हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं संभवम अध्यायम 1 के इंटरवल सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। वही गाड़ी है ना? चले आए थे। अब ये खोलो। हाँ, ये अच्छा, अस्पताल में हॉस्पिटल गई, में। मतलब वो जो पर्सन का हाँ, एक्सीडेंट हुआ था, शायद उनकी माँ उनके थी। फैमिली में। एग्जैक्टली। சீக்கிரம் பாத்துமா பாத்து வா எந்த பக்கம்னு தெரியலையே अच्छा, उनके फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था ना उन लोगों ने। சார் ஐசி எந்த பக்கம் അതെ അങ്ങോട്ട് പോയാ அங்கயா ஏய் வா சார் பார்க்கணும் சார் சார் ஏன் சார் தடுக்கிறீங்க என்ன சார் சொல்றீங்க சார் என்ன சார் சார் ஐசி உள்ள விடுங்க சார் சார் பார்க்கணும் சார் சார் பார்த்தா സാറേ സാറേ अभी वो अब खुद ये भी शॉक में हाँ, गए और कि ये यार यहाँ थोड़ा पे चल टेंस क्या रहा है। सिचुएशन में आ गए कि अब क्या। ഹലോ സാറേ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അയാൾ മരിച്ചു. पास्ट अवे। ओ भाई भाई। വേറൊരു പ്രശ്നം കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താടാ അയാളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ആ. ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണാൻ ഏകദേശം ഒരു 50 വയസ്സ് പ്രായം വരും. അയാൾ അമ്മ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ഹോസ്പിറ്റലിലെ സ്റ്റാഫൊക്കെ ആദ്യം അങ്ങനെയാ സാറേ വിചാരിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ അത് അയാളുടെ അമ്മയല്ല. तो फिर कौन है? उसकी बीवी होगी, वो 30 साल उसी में थी। பார்க்கணும் உள்ள விடுங்க என்ன சார் ബഹളം വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റലാണ്. സാർ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അമ്മച്ചിയെ വിളിച്ചോണ്ട് പുറത്തു പോകും. சார் அதெல்லாம் முடியாது சார் मुझे भी ऐसा लग रहा है। ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം. சார் இவரு பீட்டரை பார்க்கணும் உள்ள விட மாட்டேங்கிறாங்க എന്താണ് പ്രശ്നം? டேய் சொல்றா ഇന്ന് ഇവിടെ ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന പീറ്ററിന്റെ റിലേറ്റീവ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ്. റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവര് പറയുന്ന പീറ്റർ ഇവരുടെ ഭർത്താവാണ്. അതിനിപ്പോ എന്താ? क्योंकि 30 साल तक वो कह रहे कि 2 दिन Exactly. पहले आए तो റോഡ് കേസാ സാറേ. யோ ஃப்ராடா யார் சார் ஃப்ராடு അത് ഇവിടെ അടക്കിയിരുന്നു. മിണ്ടാതിരിക്ക്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് എന്താ പറ്റിയേ? காட்டுல காணாம போயிட்டாரு എപ്പോ? 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 30 വർഷം. അമ്മ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾക്ക് 30 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൂ. हाँ एग्जैक्टली। என்ன சார் விளையாடுறீங்களா நீங்க தானே எங்களை கூப்பிட்டு வர சொன்னீங்க വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ തന്നെയാ, പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആളല്ല. ஒரு நிமிஷம் சார் അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. இங்க இருக்கிற பீட்டர் இவர் தானே ആളൊക്കെ ഇത് തന്നെ. നിങ്ങളിപ്പോ ഇവരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നോക്ക്. கன்ஃபார்மா കൺഫേം ആ, നീ വിളിച്ചോണ്ട് പോകാൻ നോക്ക്. ഇത് ഹോസ്പിറ്റലാണ്, ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കരുത്. சார் இந்த கார்ல டேட்டா பொறுத்து பாருங்க சார் 1959ல பிறந்த இவருக்கு எப்படி சார் இப்போ 30 வயசு இருக்கும் 59। சார் அவர் என்னோட அப்பா சார் ओ भाई साहब, अब वो खुद शॉक में चले गए। हाँ? भाई साहब, ये है क्या? ये जो चल क्या रहा है? जिसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उसके बारे में। അവരാകെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ്. ഇതിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ സാറേ? ജോഷി, ഞാൻ നിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കാടാ. इनको ये- महसूस इनको होना खुद डर शुरू हो लग रहा गया है है कि कुछ तो गड़बड़ है और हम फंसने वाले हैं। अभी अकेले बाहर ये निकलने का रेजी ट्राई जोश जोश में बाहर निकल आ गए। मुझे लगता है इन्होंने सही भी किया कि हाँ। स्मार्ट मूव था कि कल्टी मार लो जल्दी से बिल्कुल जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। फॉरेंसिक टीम, वो जो लाश मिली है वहाँ। एग्जैक्टली। क्या हुआ यार? मैं खुद सोच रहा हूँ। हाँ, वो वही है जो मर्द से निकल के बाहर आए थे ना। देखो स्टिल यहाँ पे काफी सारे कंकाल हैं। स्केलेटन है। तो इतना शौक में चले गए।
देखो स्टिल वहां पे एक गर्ल है। जिसे फांसी दी गई थी, हाँ ये लोग भाग के गए थे तो फांसी दी गई थी ना एक को, तो हो सकता है वो उसी का हो। और वो दो जो बॉडी है वो एक, वो जो हाँ बच समझ गया मैं। मतलब वो इवेंट अलग अलग साल के हैं अब तक जो हमें दिखाए जा रहे। സനീഷേ പറടാ. ആ സാറേ, ഫോറൻസിക്കാർ വന്ന ഒരു പരിപാടികൾ തുടങ്ങിയിരുന്നേ. സാറേ, റജി സാർ അടുത്തുണ്ടോ? റജി ഇല്ല. സാറേ, ബോഡി പെരുമല സ്റ്റേഷനിൽ ആരുമല്ല. ആ ബോഡി കണ്ടിട്ട് റജി സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് സാറേ. ये क्या സനീഷ നീ അടിച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഇല്ല സാറേ. റഷീദ് ഉണ്ടോ അവിടെ? റഷീദ് സാർ ഇവിടെ ഇല്ല സാറേ. അവിടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? ആകാശില്ലേ? उसने कहा था ना एक बॉडी है जो फुल यूनिफॉर्म में थी, हाँ। इन लोगों की तरह भी नहीं थी ना वो। एग्जैक्टली केरला तो पुलिस ये की body लग रही अकेले थी। तो यूनिफॉर्म में थे इनको छोड़कर। हाँ എടാ എന്താടാ പ്രശ്നം? സാറേ, ഫേസ് ക്ലീൻ ചെയ്തപ്പോഴും കാണാൻ റജി സാറിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിച്ചത് വേറെ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ പേഴ്സിന്ന് ID കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ हाँ भाई साहब, मतलब अब रेजी जो है वो अकेले चल पड़े और तो उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, शायद ऐसा कुछ कंसेप्ट है। अब ये फ्यूचर है रेजी का। हम्म എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. എടാ ആകാശേ, നമ്മൾ ആ ബോഡി കാണാൻ പോകുമ്പോ റജി അവിടെ ഇല്ലേ നമ്മുടെ കൂടെ? നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. പിന്നെന്താ കോപ്പാണ് ഇവിടെ ഈ നടക്കുന്നത്? उनके कहने पे ये लोग आ गए भाई, और अब ये सारे मुसीबत में पड़ चुके हैं। रेजी वाज राइट, इन लोगों को इस चक्कर में पड़ना ही नहीं पढ़ना चाहिए ही नहीं चाहिए था। तब हमें लग रहा था कि ये थोड़ा साइको कैरेक्टर है, लेकिन हाँ देखा तूने वो बॉडी निकल के आती है बाहर। भाई 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 ऐसा कुछ हुआ था वो। तो दलदल में फंसने की वजह से वो जितना वो ट्राई करेंगे बाहर निकलने का, वो निकल नहीं पाएंगे। और इसी वजह से उनके बॉडी पे जो है वो पूरा मिट्टी मिट्टी थी। वगैरह थी। मैं सोच रही थी कि कोई और होगा भाई, पर ये तो रेजी की बॉडी निकली वहां पे। क्या ऐसा करेंगे वो अभी? अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखो वो तो पहुंच गए यहाँ पे। पीछे पीछे जा रहे हैं और वो उनका हाथ काफी स्लिपरी है। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ। वहाँ पे बहुत सारी चीजें, कुछ भी उठा के पकड़ लो। हाँ ये सही रहेगा। अरे यार, ऊपर से बारिश भी हो रही है। अच्छा वो खून गिरने वाला है अभी देखो। और पूरा बादल होने वाला है। गए काम से। सब शांत हो गया, देखो बारिश रुक सब गई। शांत हो गए। अरे ये यहाँ का प्रॉब्लम क्या है? बस बारिश रुक गई है, हाँ वो आवाजें आना शुरू हो जाएगी फिर से भाई जैम। ऐसा होता है कहीं डेविल को खून देकर जब हमको जगाते हैं ना, उस टाइप में लग रहा है ये सब कुछ। ये करने वाले हैं। काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म। वो मार किसको रहे हैं ऊपर? वो देखो सेपरेट, फिर से तीनों के तीनों सेपरेट हो गए।
वो बार बार हो रहा है ना? हाँ, ये बार बार ऐसा ही हो रहा है। और मुझे लगता है ये जितने भी बार दिखाया गया ना, ये अलग अलग टाइमलाइन की स्टोरीज थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। फिर से अलग हो गए भाई। हम्म। देखो पहला वाला जेम्स है। वो वो लड़की हाँ पहला वाला से। जो पोर्तुगीज हाँ गर्ल थी, लड़की ओ हाँ। भाई 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 भाई, इसको देख के तो डर ही लग रहा है मुझे। ये तो जेम्स नहीं है। तुमने देखा जेम्स की मुंडी कटी हुई है। और उसने बचाया। क्या हुआ वो? क्या था क्या वो? क्या था, अभी भी पिक्चर समझ में नहीं आ रहा है। बाहर आ गए उस हेलुसिनेशन से। मैं वही बोल रहा हूँ, स्टिल वी आर कंफ्यूज। फिर से ये लोग, पर ये सेपरेट तो हुए हैं अभी इनके हाँ, साथ। उनके सर भी नहीं है और रेजी भी शायद हाँ, डूब मुझे गए। लगता है ये जब जब खून गिरेगा ना, तब सारे सेपरेट होते जाते हैं। किसकी आवाज आ? कोई रो रहा है शायद। ओ भाई, ये वही लड़की तो नहीं है। आखिर तो അന്നേനെ അന്നേനെ അവനെ കാണാനില്ല. കരയില് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇരിക്കേ. नहीं, वो लड़की होती तो वो तो इंग्लिश में बात कर रहे थे ना। हाँ ये सही है, सब। सही है, कोई और ही है। सब सब एक एक साल में से, एक एक टाइमलाइन में से एक एक करके आ रहे हैं पूरा। क्या देख लिया भाई? अच्छा, इनको क्या हुआ? वो उस टाइम के गुंडे हैं शायद। हाँ हाँ। तो वो सभी पुलिस वालों को मार रहे थे ना उस वक्त, तो हाँ। ये हो सकता है उस टाइम के गुंडे वो जो बच गए। मतलब वो प्रॉब्लम तो अलग ही है कि हर कोई कंफ्यूजन हो रहा है और ये अलग से। ये जो बाहर आ गए थे वो। यही तो था ना जिनका एक्सीडेंट हुआ था हाँ। ना। ओ भाई साहब, बट वो एक तरीके से बच वो गए। देख रही है वो हाँ। सीन, लेकिन ये तो बहुत सालों पहले हुआ है। फ्यूचर पास्ट और सब सब घुमा जाता है प्रेजेंट भाई। सब एक हो रहा है भाई। तो इन्होंने उस वक्त इन्हें बचाया होगा। സാറേ പോലീസാണ്. വെള്ളൂർക്കാട് സ്റ്റേഷനിലെ CPO. ये याद है। हाँ स्टीफन जॉर्ज। हाँ आओ भाई भाई பஸ்ல भाई। தப்பிச்சிட்டாங்க. அவங்கள தேடிட்டு இருக்கோம். സാറേ ഇന്ന് ഏതാ ഡേറ്റ്? May 26th. ये पास्ट என்ன சார் புரியல? അല്ല അല്ല സാർ ഇയർ എന്നതാൻ കേട്ടെ. என்ன விளையாடுறீங்களா? പ്ലീസ് സാർ
1994 आदि की पहले ओ मुझे past लग ही में रहा था चले ये गए भाई। हैं, हाँ। जब भी वो खून का बूंद गिरता है ये टाइम ट्रैवलिंग चल रही है टाइप की। देखो उनके टी शर्ट पे था ऐसे कुछ। हाँ ये दो बॉडी किसकी थी? इनके साथ एक और बॉडी थी ना भाई। तो हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ। कहीं ये इनकी तो नहीं थी? नहीं एक तो खुद स्टीफन की थी ना। हाँ एक तो थी, बट उनके बाजू में और एक बॉडी थी ना। 12 भी आए तो। हाँ ஏய் ஒழுங்கா சரண்டர் ஆயிடுங்க ओ ऐसा हुआ था। ये देखो ये सीन हमने देखा है। ये यहाँ पे हाँ और खून और क्या हो रहा है? बार बार खून गिर रहा है। अब फिर से वो सेपरेट हो जाएंगे यहाँ पे। फिर से दूसरे टाइमिंग में चले गए होंगे। तो कुछ बना रहा था वहां पे, पहले से में देखा था हमने। बिल्कुल वही हो सकता है। चक्रव्यूह की तरह लिख ये पूरी भूलभुलैया है वो। साइन कहीं ना कहीं वो हमें दिखाता है। हाँ फंसी गए ना उस चक्रव्यूह। उस पेड़ के पास स्टीफन की बॉडी थी और जो उनके साथ ऑफिसर थे ना उनकी बॉडी थी, जिक्र किया था लास्ट पार्ट मोतोवेल में। हाँ मोतोवेल की हो सकती है बॉडी। ओ Who are you? भाई साहब ये चल क्या रहा है इस मूवी में। ओके इस वक्त जब वो पेड़ पे वो कुछ कर रहा था तब उन लड़कियों ने वो शिकार की थी किया और उस था। वजह से वो खून पड़ गया था। वो देखो अभी तो फिर से वो टाइम जेम्स वाला एरा जो था हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। ओ ये यहाँ पे है जेम्स। एग्जैक्टली। ये एकदम अच्छा स्टार्टिंग ये वाला scene। इसलिए ओ भाई साहब Why are you so scared? Come to me. Come and kiss me, just like our first time. Come on, get up. ओ भाई साहब ये सीन देखा था वहां से हमने। भाग गया हाँ। ओ मुझे लगता और ये है लोग वो गुंडे हैं शायद हाँ। जो पुलिस वैन में से भाग गए थे। तो इसने उसका हाँ गला काट और पता है एक चीज मुझे क्या समझी है, ये जहां पे भी जा रहे हैं वो इंसिडेंट हो रहे हैं ये कारण है वो इंसिडेंट होने के लिए। तुम देखो उस टाइमलाइन में अगर वो जेम्स के पास नहीं जाते तो वो वहां से बाहर नहीं निकलता। പേടിക്കണ്ട സാറേ, ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ പ്രേതങ്ങളൊന്നുമില്ല. वो घोस्ट താനാരാ? സാറിന് ഞാൻ ആരാന്നറിയണോ അതോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയണോ? സാർ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു വിഗ്രഹം കണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ തല ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു. അതൊരു കാക്കയുടെ. एग्जैक्टली
तो ये है क्या? കാട്ടിൽ കയറിയതിനു ശേഷം ഇത്രയും നേരമായിട്ട് ഒരു കാക്കനെങ്കിലും കണ്ടായിരുന്നോ? नहीं, एक भी नहीं था. ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അതിനെ ചുറ്റി हाँ बिल्कुल. ഇതിന്റെ എല്ലാം തുടക്കം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാ. ये तो हम भी समझना चाहते हैं एग्जैक्टली. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ പറങ്കികൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയ കാലത്ത് अच्छा. Portuguese. അന്ന് ഈ വിഗ്രഹത്തെ വെച്ചാരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാട്ടിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഗോത്ര വിഭാഗക്കാരായിരുന്നു. അവർ കാക്കകളെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത്. ओ. അവർക്കും അവരുടെ പരമ്പരകൾക്കും നല്ല കാലം വരാനായി അവർ ഈ വിഗ്രഹത്തെ വലം വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു. अच्छा. ഗർഭിണികൾ ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ കാക്കകളെ ഊട്ടുകയും ചെയ്താൽ അവർക്ക് ജനിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നല്ല കാലം വരുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ओ. പറങ്കികളുടെ അധിനിവേശം ശക്തമായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടം ഭരിച്ചിരുന്ന യുക്തിവാദിയായ ഗബ്രിയൽ അന്റോണിയോ പ്രഭു അന്ന് വരെ ഇവിടെ നിലനിന്നിരുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസത്തെയും തുടച്ചു നീക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അയാൾക്ക് ഒരു തത്വമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ: പ്രൈസസ് ഓൺലി ഫോർ ദ കിങ്. ആരാധന രാജാവിനോട് മാത്രം. तो उन्होंने सबको मार അയാൾ दिया. ഇവിടുത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കുകയും വിലപിടിപ്പുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ നാട് കടത്തുകയും ചെയ്തു. പുറം ലോകത്തേക്ക് വലിയ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാതിരുന്ന ഈ വിഭാഗത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ആരാധനയെക്കുറിച്ചും ഒരിക്കൽ പ്രഭുവിന്റെ ചെവിയിലെത്തി. അങ്ങനെ അയാൾ തന്റെ സർവ്വസന്നാഹങ്ങളുമായി ഈ കാട് കയറി ആ വിഗ്രഹം സ്വന്തമാക്കാൻ. അന്നിവിടെ ഉണ്ടായ ഊരുമക്കൾ എത്ര കരഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടും അയാൾ അത് ചെവി കൊണ്ടില്ല. അയാൾ അയാളുടെ സർവ്വ സൈന്യത്തെയും ഉപയോഗിച്ച് ആ വിഗ്രഹത്തെ അവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചു. हाँ. ये बहुत अच्छा दिखाया എത്ര उन्होंने. ശ്രമിച്ചിട്ടും അവർക്കത് സാധിച്ചില്ല. അതിൽ കോപം കൊണ്ട പ്രഭു ആ ഊരുമക്കളെ വെട്ടിയും വെടിവെച്ചും കൊന്നു. अच्छा. उनके लोगों को ही मार डाला उन्होंने. എന്നിട്ടും കലിതീരാത്ത അയാൾ ഇവിടുത്തെ കാക്കകളെല്ലാം ചുട്ടരിച്ചു. पागल हो गए. ആ രക്തച്ചൊരിച്ചിലായിരുന്നു എല്ലാത്തിന്റെയും തുടക്കം. ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ മൂർത്തി അവർക്ക് നല്ല കാലം കൊടുക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ അതിന് കാലത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം ആരും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം കാട്ടിനകത്ത് യാത്ര ചെയ്ത് ക്ഷേത്രത്തിന് മുമ്പിലെത്തിയ പ്രഭുവും സന്നാഹത്തിനും ആ കൂട്ടക്കുരുതിക്ക് ശേഷം ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ओ. ഒരു ദിവസം, ദിവസങ്ങളായി, മാസങ്ങളായി, വർഷങ്ങളായി അവരിപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞ സാർ വിശ്വസിക്കുമോ? ओ. फंस गए, वो भी फंस गए, वो फिर वापस. അന്ന് ഈ മണ്ണിൽ ചോര വീണതോടുകൂടി അതുവരെ സ്വാത്വിക ഭാവത്തിലിരുന്ന മൂർത്തി നല്ല ഉഗ്ര കോപിയായി. भाई 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 भाई. പിന്നീട് ഓരോ തവണയും ഈ മണ്ണിലെ രക്തം വീണാലും हाँ. हाँ. ഒരളവിലധികം ശബ്ദം ഉണ്ടായാലും ഇവിടുത്തെ സമയത്തിന്റെ ഗതി തന്നെ മാറിത്തുടങ്ങും. और ये हुआ, वो सारी पुलिस वैन वाले कंडोलेंट कैटगरी इसके उन्होंने बाद वो मरिचवर फिर है से सारे। शुरू हो गया. അവരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പെട്ടുപോയവരാണ് लूप. एग्जैक्टली ये लूप ही പല लग रहा है. കാലങ്ങളിലായിട്ട്. अलग अलग काल के. हाँ. एक काइंड ऑफ श्राप ही बोल सकते हैं हम इस चीज को. और अब ये भी फंस चुके हैं वहां हाँ. पे. उस पोर्तुगीज एरा की वो ये दोनों ये हैं. जेम्स. और वो मिल रहे हैं एक दूसरे को, हम्म. और उनका सामना हो रहा है हर किसी के साथ कहीं. हर किसी की स्टोरी में एग्जैक्टली. ये भी मर गए. अब वो यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकते. लड़की बेचारी. लड़की भी फंसी हुई है. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ഈ ഊരുമക്കളെ ചതിച്ച് പ്രഭുവിനെ ഇവിടെ എത്തിച്ച പറങ്കി സൈന്യത്തിന്റെ ചാരനായിരുന്നു ഞാൻ. ओ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണക്കാരൻ.
वो तब से है। एग्जैक्टली अब समझ में आया। സാറേ ഇതിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ സാറേ. अच्छा इनको पता है। ഞാനും സാറും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാൻ കാരണമായ ആ ഒരു സംഭവം അന്ന് നടക്കരുത്. അതല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. कैसे होगा? मैं वही अब सोच फिर रहा से हूँ। इतने पुराने साल में जाना पड़ेगा जब पोर्तुगीज आए थे। भाई ये कुछ अलग ही लेवल है भाई सच में। अशोकन सर, हाँ, जो जिनकी डेड बॉडी अभी उनको मिली थी। यो अभी जाएंगे नहीं शायद बचाने। उस टाइम के वो दो आ गए ना, और ये यहाँ वही पे चीजें हो रही है भाई साहब, एक लूप इसलिए की उसने तरह। वो उस तरीके से देखा था उस वक्त। हाँ इस इंसिडेंट के पहले ऐसा एक ही चीजें हो रहा है, फ्यूचर प्रेजेंट सब। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, यही वो रीजन है जिसकी वजह ये सब कुछ हो रहा है। वो फिर से गिर गया। ओ भाई 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 अब क्या होगा। उनके लोगों को मारा गया था ना, जब भी वहां पे एक भी ब्लड गिरता है तो ऐसा होता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अशोकन सर के हाथों को क्या लगा हुआ। हाँ जब वो लास्ट टाइम बातें कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि उनके हाथ को लगे। वही तो देखना है। वो पागल हो चुके हैं इस फॉरेस्ट में भाई, हम देखकर पागल हो गए और वो उसमें रहकर। महसूस कर। भाई सच में ये मूवी बहुत पेशेंस के साथ देखने बहुत का। ज्यादा पेशेंस और मुझे लगता है माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इस मूवी को देखने के लिए। क्या किया उन्होंने शायद खुद को इंजोर किया ताकि वो ब्लड गिर सके नीचे, ताकि वो और हाँ। पीछे आगे कर सके। भाई साहब दोस्तों ये जो मूवी है ना, जब हम फर्स्ट टाइम से देख रहे हैं, मुझे लगता है इसके पहले हमने जितने भी मूवीज देखे हैं ना, स्टार्टिंग में कंफ्यूजन होता है, ज्यादा से ज्यादा इंट्रो पोस्ट इंट्रो मैक्सिमम इंटरवल। लेकिन मुझे लगता है ये ऐसा लूप चल रहा है कि जिसमें आंसर्स मिल नहीं रहे, स्टिल और भी कंफ्यूज होते जा रहे हैं। इतना कंफ्यूजिंग है पिक्चर। हमें स्टार्टिंग में से लगा सिर्फ जितनी भी स्टोरी चल रही है एक दूसरे को इंटरलिंक है, जो कि है भी, लेकिन इतना कंफ्यूजन क्रिएट करती है भाई साहब। मतलब इससे आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज निकाल सकते हो कि हम सोच भी नहीं सकते, इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटीज। कितना मुश्किल हो गया है ये सब कुछ। मतलब हर एरा का कोई ना कोई अगर इस फॉरेस्ट में फंसा है तो उसका सामना किसी ना किसी एरा के इंसान के साथ हो रहा है। मतलब जब वो पोर्तुगीज गर्ल वाला जो देखा था हमने, वो मिडल में जब वो आते हैं वैन में से, जब सारे गुंडे निकल के भागते हैं, तो उनका सामना भी हुआ है शायद, क्योंकि जेम्स को उन्हीं गुंडों ने मारा है होगा शायद। और मतलब हर कोई एक में किसी ने, हाँ, एक लूप। और अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि एक फ्यूचर वाला भी आनंद वहां पे है और पास्ट वाला भी। पास्ट प्रेजेंट कौन सा बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम जब वो रेजी को बचाने आते हैं तो फ्यूचर में जो आनंद होता है वो भी वहां पहुंच चुका होता है उन्हें बचाने के लिए। बट उस टाइम का जो प्रेजेंट होता है वहाँ के अशोकन सर और आनंद भी उन्हें बचाने आते हैं। और
मैं सोच भी रही थी कि ये इतने कंफ्यूज क्यों क्यों दिख है, रहे हैं हाँ। जी, कि वो ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, बट वो उन्हें 2 बार दिखे होंगे वहां पे आनंद, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। और कितना कुछ चल रहा है, मतलब ये सब हुआ क्यों, ये स्टोरी हाँ। का तो अलग ही है। पूरी स्टोरी अगर छोड़ दे दोस्तों, सिर्फ वो जो डीएटी की स्टोरी है बस वही समझ में आई है कि क्या हुआ है। और वो जो लास्ट कैरेक्टर उनको मिलते हैं वो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले इवेंट हाँ। पे जाना पड़ेगा, वहीं से रास्ता इसका हो सकता है। और टाइम में अगर इसमें ट्रैवल करना है तो आपको थोड़ा ब्लड जो है वो अगर जमीन पे गिरता है तो वो टाइम ट्रैवल करते हैं। तो इतनी चीज सिर्फ उनको क्लियर है कि क्या करने से क्या होता है। अब वो पीछे कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे, अभी भी इसके रास्ते अब पता नहीं है। और वो एक लूप होने की वजह से दोस्तों जितने भी कैरेक्टर अभी उसमें फंसे हुए हैं वो कैरेक्टर बस घूम रहे एक दूसरे के स्टोरी में घूम रहे, बस यही चल रहा है। बस वही है। और पहले भी सोचा था कि ये वाली लाश किसकी मिली है, पर अब पता चला है कि वो रेजी की लाश थी, क्योंकि वो सारे सिविल हाँ जब हाँ बिल्कुल मैंने बोला भी था कि उनके स्ट्रैप था करके उनके शर्ट पे वो नहीं हो सकते। तो वो अकेले से मुझे लगता है अशोकन को छोड़ के वही एक थे जो पूरे यूनिफॉर्म में थे। तो हमें अब अंदाजा लग रहा है कि क्या चल रहा है। और बाहर भी कंफ्यूजन बढ़ चुका है, फॉरेंसिक वालों को कंफ्यूजन हो रहा है कि ये रेजी सर की बॉडी लग रही है, पर रेजी सर को हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों आप हमें पेट्रियन और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों संभवम अध्यायम ओन्नू के नेक्स्ट पार्ट में। बाय।